نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سورہ النبأ کا سلسلہ چل رہا ہے اور آیت نمبر 21 سے ہم آج شروع کریں گے۔ جو بھی کوشش ہو رہی ہے اس کو بار بار محنت کر کے آگے بڑھاتے رہیں گے اور الفاظ کی جو پوزیشن ہے اس کو سمجھتے ہوئے ترکیبات تک پہنچتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے ان، اس کے بارے میں ہم جان چکے ہیں کہ ان کیا ہے، کون سی فیملی سے ہے، کیوں جی؟ ان حروف مشبہ بالفعل سے ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مشبہ بالفعل کا عمل کیا ہے کہ اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، اور جو بھی جملہ ان کے بعد آتا ہے وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، کیونکہ ان تو ایک حرف آیا ہے، عامل ہے، اس کے بعد اسم آیا ہے، پھر اسم آیا ہے، اور دونوں کا سٹیٹس اس نے اس کے عامل ہونے کی وجہ سے بدلا ہے۔ تو لہٰذا جب جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو ہم اس لیے اس کو پہلے کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کا درجہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب ہم کلوزنگ سٹیٹمنٹ دیں گے تو ہم اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے۔ یہ ایک اضافت میں نے آج تھوڑی سی بتا دی۔ پہلے ہم یہی کہتے رہے کہ ان کے بعد آنے والا اسم جو ہے وہ نصب لیتا ہے اور جو اس کی خبر ہوتی ہے وہ رفع ہوتی ہے۔ تو ان کے بعد آیا ہے جی جہنم۔ جہنم ایک غیر مورب، غیر منصرف اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اسم جو ہے اعراب کے اعتبار سے تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ مورب اسما، مورب منصرف اگر کہیں گے تو زیادہ بیسٹ ہے، آپ کو ٹیکنیکلی اس چیز کی سمجھ آئے گی کہ منصرف کا اگر تھوڑا سا اور ترجمہ کر لیا جائے تو اس سبجیکٹ کے اندر جو میکسیمم کیپیسٹی ہے وہ ہے رفع نصب جر کا آنا۔ اسم کے اوپر یا رفع آئے یا نصب آئے یا جر آئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اعراب ہیں ان کا تینوں کا کسی کے اوپر آ جانا وہ ہے منصرف، ٹھیک ہے۔ مورب سے مراد کیا لیں گے آپ؟ اعراب، ٹھیک ہے، سمپل رکھیں۔ کوئی کس بندے نے یہ بھی کہا جی غیر مورب اور مورب عربی الفاظ اور غیر مورب جو ہیں وہ غیر عربی الفاظ ہیں، مجھے کوئی اس کی اس بات میں صداقت نہیں نظر آئی، میں اس کو نہ نہیں اتنی تفصیل میں لے کے جاتے۔ تو یہ سب سے بیسٹ یہ ہے کہ جو مکمل تبدیلی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، رفعی حالت سے نصبی حالت میں جا سکتے ہیں، نصبی اور جری دونوں میں جا سکتے ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے مورب منصرف۔ تو جو صرف دو حالتیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نصبی اور جری حالت جو ہے ان کی ایک ہی رہتی ہے۔ بیسیکلی رفعی حالت سے نصبی حالت تو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ہمیں اس طرح کہنا چاہیے کہ جو نصبی حالت ہے یا رفعی حالت سے وہ جری حالت میں نہیں جاتے، نصبی پہ ہی رہتے ہیں۔ تو دو حالتیں ایکسیپٹ کرنے والے کو ہم کیا کہیں گے؟ مورب غیر منصرف۔ اعراب تو لیا ہے اس نے لیکن پورا نہیں لیا، جری حالت کو ایکسیپٹ نہیں کیا، جری حالت کو ایکسیپٹ کرنے کی بجائے نصبی پہ ہی اکتفا کر لیا۔ ان میں سے یہ اگر اضافہ کرنا ہے جو مورب منصرف ہیں وہ تنوین ان پر ہوتی ہے اور جو غیر منصرف ہوتے ہیں ان پر تنوین نہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، وہ آنے لگی تھی مثال، ٹھیک ہے، کہ جو مورب منصرف ہے وہ تنوین کے ساتھ آتے ہیں اور غیر منصرف جہاں پہ تنوین نہیں ہوتی۔ مثالیں دیکھ لیں، سلیمان، سلیمانو، جبریلو، ٹھیک ہے۔ تو اب سلیمانو سلیمانہ رہے گا، سلیمانی نہیں ہوگا،
जिबरीलु जिबरीला, जिबरीली नहीं होगा। उसी वजन पे हमने याद करने हैं, ये बाकायदा हमें ज़बानी याद करने पड़ेंगे, किताब में है तो आप उसको ना इनको याद करा लेंगे कौन कौन सी कैटेगरी जो है वो जो जरी हालत कबूल नहीं करते। तो उन्हीं में से जहन्नम एक इसम है, ठीक है, इसको जरी हालत कबूल नहीं है, ये सिर्फ जहन्नमा या जहन्नमू में रहता है। ये असलन जहन्नमू है, इन्ना की वजह से जहन्नमा हुआ, क्योंकि इन्ना का अमल ये है कि ये हरूफ नासबा में से है। जब भी आता है तो अपने इसम को क्या करता है, तो इसने ये नस्ब जो जबर है जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं, ये नस्ब दे दी है, तो हम इसलिए इसको पढ़ेंगे इन जहन्नमा। ठीक है, अब आगे ये तो तय हो गया कि इन हरफ मुशब्बह बिल फेल है, इसको हरफ ताकीद भी कहते हैं और इसका तर्जुमा बेशक किया जाता है। जहन्नम जब हम कहेंगे तो इसको इन्ना का इसम कहेंगे। क्या कहेंगे? इन्ना का इसम। ये एक टेक्निक है, टेक्निकली ग्रामेटिकली आप देखें कि जब भी इन्ना की फैमिली का कोई हर्फ आ जाएगा तो उसके बाद आने वाले इसम को हम उसका इसम ही मंसूब करेंगे। इसी डाई पे काना जो आ जाए, काना में से कोई काना की पूरी गिरदान आ जाए, ठीक है, या काना व खवातु आ जाए, उसमें से कोई आ जाए तो उस वक्त भी हम काना का इसम और काना की खबर कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इन्ना का इसम, और जब हमने इन्ना का इसम कह लिया है तो फिर आपको इन्ना की खबर डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ये अधूरी बात है कि आपने इन्ना का इसम ढूंढा, बड़ी आसानी से मिल गया कि आपने देखा ये फेल नहीं है, ये जहन्नमा लिखा हुआ है, तो ये भी पता चला कि इसकी वजह से नस्ब आई है, तो तय हो गया जी ये क्या है, इन्ना का इसम है। इसमें इन्ना कह लें या इन्ना का इसम कह लें, जैसे आपकी मर्जी है। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि हमें इन्ना का बेसिकली चाहिए तो इन्ना की खबर चाहिए, दूसरा इसम हमने ढूंढना है। तो जो पहले हम कर चुके थे मुख्तलिफ अफ़आल में कि हम कुछ चीज लेके आगे बढ़े हैं, तो कुछ और फार्मूला सामने आ गए जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुरक्कबात आ गए हैं, पहले उनको हल करना। आगे गए हैं तो कानत आ गया है, काना काना कानू कानत चौथा सीगा है। ठीक है, तो वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है, अफ़आल नाक़िसा में से है। ठीक है, तो इसमें फाइल क्या होगा, हिया ज़मीर जो है ये फाइल होगा इसका। और अब देखें कि हमें चाहिए तो इन्ना की खबर, लेकिन यहां पे कानत आ गया तो पहले इसको हल करना। ये मैथमेटिक तरीका है, जिस तरह आप सवाल निकालते हैं तो ब्रैकेटें खोलते जाते हैं जबरा में, ठीक है ना, अलजबरा में, उसी तरीके से अब ये नया काम आ गया, पहले ये ब्रैकेट खोल लें। तो कानत के अंदर हिया ज़मीर है, तो ये कानत की का इसम हुआ। ठीक है, क्या हुआ, इसम हुआ। अब देखें कि आगे मिरसादा। अच्छा, ये लफ्ज जो है यहां पे इसमें ज़र्फ है, मिफ़आलुन के बदन पे है मिरसादुन। क्या, मिरसादुन है। ठीक है, अब वहां पे मिरसादन लिखा हुआ है, कैसे कोई बंदा बता सकता है क्यों? खबर मंसूब होती है, बिल्कुल इसी वजह से। जैसे यहां पे ये इन्ना का इसम हमेशा मंसूब होता है, तो कानत की जो काना की खबर है वो मंसूब होती है, उल्टा बिल्कुल, आपने पढ़ा हुआ है ना। ठीक है, तो ये दोनों का नस्बी हालत में होना जो है ये कुलिया है, इन्ना वाला और काना वाला। क्लियर हुआ जी। तो ये मिफ़आलुन के वजन से मिरसादुन जो है, इस कानत की वजह से मिरसादन।
क्लियर हुई जी बात, भूलेंगे तो नहीं। ये आना जो एराब का है, इस तरीके से एक एक चीज को समझना इंतहाई जरूरी है। बड़ा सिंपल है, कोई शक तो नहीं है। ठीक हो गया जी। अब देखें कि हमने यहां कहा था कि कानत के अंदर जो जमीर हिया है वो काना का इसम है, ठीक है। अब जिस तरह हम यहां ढूंढने निकले थे, इन्ना का इसम तो मिल गया था, इन्ना की खबर निकल अभी ढूंढ ही रहे थे, तो यहाँ पे काना आ गया, तो पहले इसको हल करना शुरू कर दिया। तो काना का इसम हिया के तौर पे हमें मिल गया। अब हमें इसकी भी खबर चाहिए, तो आगे हमने देखा कि मिरसादन, ठीक है। अब इसकी ये जो अलामत है इसने भी आपको बताया है। अगर ये इन्ना के साथ रिलेट करता होता तो मिरसादन होता। एक एग्जाम्पल तो नजर आ रही है सामने, तो ये आपको बता रही है कि ये इसकी किसकी खबर है, कानत की ये खबर है, ठीक है। अच्छा, इसमें नंबर 1 भी लिखा हुआ है, जब आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि कोई दूसरी खबर भी है। हमने देखा कि कानत मिरसादन जो है ये एक जुमला है, जुमला इस्मिया है, और जिसमें हिया मुब्तदा है और ये जो मिरसादन है ये खबर के तौर पे है। लेकिन यहां पे हम इसको क्या कहेंगे, कानत जो है क्या है, हिया बतौर इसम और मिरसादन बतौर खबर। ठीक हो गया, ये चीज इतनी हल हो गई जी। ये है इसमें ज़र्फ। अब आगे हम देखते हैं कि इसको थोड़ा सा ना तरकीब के हिसाब से देख लें। ये तो आपको पहले पता ही है, इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि फेल मादी नाक़िस है, बाब नासरा से है, काफ वा नून इसका मादा है, और हिया इसम कान है वो लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसमें ज़र्फ है, इसका रूट वर्ड रा स्वाद दाल है, और ये इसका स्टेटस क्या है, ये खबर काना है, ठीक है। अब देखें जी कि कानत मिरसादा, ये जुमला फेलिया नाकस खबर इन्ना महल मरफू है। इसको पहले इतना पढ़ें, ये बता सकते हैं कि जुमला फेल या नाकस ये लफ्ज क्यों लिखा हुआ यहां पे, किस वजह से है। ये छोटी छोटी समझ लाना बड़ा जरूरी है। मैं पूछे बगैर अगर नहीं जाऊं, नहीं मालूम, तो फेल नाकस हुआ ना, ठीक है। इसलिए ही इसको जुमला फेल या नाकसा कहा गया। ये वाला, ये समझ आ गई है। अब जब ये जुमला फेल या नाकस है तो हम एक और चीज भी ढूंढ रहे हैं, इन्ना की खबर ढूंढ रहे हैं ना। ये सारा जुमला जो है इसको तो हम मरोड़ के वहां मरफू नहीं कर सकते, रफा नहीं दे सकते, तो क्या कहेंगे कि ये महल्लन, ये सारा जुमला जो है कानत मिरसादा, ये जुमला फेल या नाकस महल्लन मरफू होकर खबर इन्ना है। समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई। क्यों जी, कल सब समझ आई?